छाया रहा. Welcome Shridhar, welcome Param. The first thing I would like to ask you is about your journey. How did TAG came into your vision? How did you guys founded TAG, if I may ask? It starts with Shridhar. Yeah, Shridhar. So guys, first of all, thank you so much for joining this very precious moment with us. We are young dreamers like all of you, and we very strongly believe in the power of content. We believe that it is that platform, it is that mode of communication that can help take messages from one person to the world. So I would first of all like to have a huge round of applause for all of you in the house. अब तो श्रीधा ने खुद भी कह दिया, अब तो मुझे लगता है डबल आवाज आनी चाहिए थी, नहीं? So this journey of the Ayurveda company started with a personal skin disease that I suffered from for about 3.5, 4 years, which was from 2014 to 17. And Param and I, we weren't married until then, but we went from pillar to post, door to door of every modern doctor, as you say, in Delhi NCR. It is only when we were about to get married in 2017 that my mom insisted that we try some alternative medicine or something that would give me long-term solutions. And that's when we moved to Ayurveda together. And in 2017, when we started our first encounter with Ayurveda, you won't believe that within 3 months, the issues were greatly resolved. And within 6 months, the problem was absolutely gone. So that's when we decided that we wanted to do something which would take the message of Ayurveda to a broader audience. But we did understand that there were a lot of stigmas, taboos associated around its efficacy, around its coolness quotient, and how it was only meant for a certain kind of audience or a certain age and above. And that's when we decided that the Ayurveda company would become TAG, Ayurveda for the Young and Restless India. Very nice. Thank you so much, Shridhar. I would like to ask from Param also, how cool is that when we say Ayurveda to you? Or like, how much did you believe in Ayurveda before you launched TAG? So, for me, see, Ayurveda came into existence because of her. I had heard about it, but like a lot of new generation, they must have heard about it, but they've not experienced it firsthand. So our mission was that how do we make it effective for this generation? How do we make it relatable for them? How do we make it, that they connect with Ayurveda the way they connect with, any new age young brand, right? So from there, the journey started that how it should be fast, effective, yet affordable, and then create a global brand going out of India to the entire world. That why don't you look at Ayurveda the way you look at any other global L'Oreals of the world? Why Ayurveda cannot sit across the globe the way other global beauty brands are there? And for that, it's important. And for that, if you really look at our brand film we have just released, Yes. it is actually the essence of what we are building, who we are building for, and how we are building. Right? Yes, getting back to Ayurveda. Yeah. And you're actually making us realize that. Can we please ask the team and request the team to please play the AV that we have? Getting back with Ayurveda. Get back at those जिन्होंने तुम्हारा हुनर नहीं पहचाना, साथी होके भी तुम्हारा हौसला नहीं जाना, तुम्हारी बेचैनियों को तुम्हारी कमजोरी माना. Get back by choosing TAG. हमने आयुर्वेदा को बनाया है सिंपल, यंग एंड इफेक्टिव. Get back with TAG, the Ayurveda company. Wow, wonderful. And you are making us, जैसे मैंने कहा, realize the importance of Ayurveda. It's not slow, it's magical. क्योंकि आयुर्वेदिक साइंस एक ऐसी साइंस है जो सदियों पुरानी है. और हम चाहे कितना भी मना करें, but हम back to आयुर्वेदा जरूर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मेडिकल साइंस में या फिर जो मेडिकल नुस्खे हैं, उनके चलते हमारे जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उनको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उनको दबाया जा सकता है. But then the solution to any problem is उसे जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना, जो मुझे लगता है आयुर्वेदा बहुत अच्छे से कर पाता है, राइट? Absolutely. अच्छा, वैसे आज जिस
बहुत अच्छे नेक काम के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं. That is the launch, the grand launch of Kajal by Kajal. So can we just have a huge round of applause? इससे पहले कि हम इस पर से पर्दा हटाएं और हम इंट्रोड्यूस करें काजल को, जिनको हम बाहर मिल चुके हैं. लेकिन yes, I would like to introduce her. Can we have a huge round of applause for Kajal by Kajal? Thank you so much, guys. But then मैं काजल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. Very beautiful, pretty, talented, gorgeous, versatile, Make some actress noise, and guys. entrepreneur, काजल अग्रवाल with us, जो आज काजल बाई काजल के लिए यहाँ पर आई हैं. और जैसे हमने उनसे बात भी की कि काजल आज जो नाम है ना आपका, वो आपकी पहचान भी बन गया है, because this is your name and you have collaborated for Kajal. So how good is that feeling? Isn't it just perfect? I think it's the perfect fit. First and foremost, a very warm welcome and thank you so much for coming, guys. It's really a pleasure to see all of you here today. This product is extremely personal. It's something that's very close to my heart. I have had the honor of co-creating this product with Sridhar and Param. And it's been a wonderful journey to get to know them, to create this product, to discuss formulations, to study the science behind it. It's been a massive eye-opener. But at the same time, it's just been one of the most beautiful journeys. It's like having another baby. It's extremely special to me, and it couldn't get better than celebrating it today here with all of you. Thank you. Absolutely. वैसे इससे पहले कि हम लॉन्च करें, I would like all of you and all of you guys to sing along with me. It's like काजल एक ऐसी चीज है like जिससे एक लड़की की खूबसूरती को बयां किया जाता है. I hope परम भी ऐसा कई बार कर चुके हैं, है ना? तो No, I'm waiting for that moment. हाँ, yes, yes, yes. वैसे और इसी के साथ अगर काजल का टीका लगा ले तो नजर नहीं लगती. पीछे लिखा भी है बुरी नजर वाले, आगे नहीं बोलूंगी, बट काजल लगा ले, ये जरूर कह देती हूँ. So it's like कजरा मोहब्बत वाला अखियों में कजरे रे ले ली मेरी जान, कुर्बान. दुनिया है तेरे पीछे लेकिन मैं किसके पीछे. Yes, गौतम के. अपना बना ले मेरी जान. We can call him on stage, no? Yes, yes, please welcome. अच्छा, वीडियो बनाने में बिजी हैं आज बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं. आप भी कंटेंट क्रिएटर बन गए ना. थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग द वीडियो. चलो गाना तो हो गया है, बट मुझे लगता है विदाउट फर्दर डिले लेट्स लॉन्च द काजल दैट वी हैव. लेट्स लॉन्च द Absolutely. काजल. हाँ, okay, so we are unveiling that. You to please chair for. लॉन्च करने में कितना दिन लगा? ताजमहल बनाने में टाइम तो लगता है. अरे वाह, लेकिन ताजमहल बनाने वालों के हाथ पैर कटवा दिए गए थे ना. मैं डर गई हूँ ऑलरेडी, है ना. I'm so sorry. Well, in fact मैं ये जो आप लोगों की आंखों की चमक है ना, वो आज बयां कर रही है कि काजल कितना इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में. तो आप एक लोग भी दिन काजल ना लगाओ तो लोग पूछते बीमार हो क्या? है ना. Does सुरमई it अखियों. happen with you also? होता है ना ऐसा? कितनों के साथ होता है? यू कैन रेज योर हैंड्स. ये देखो, सबसे पहले निशा का हाथ आगे उठा है भाई. थैंक यू सो मच. और नहीं दिख रहे हैं मुझको हैंड्स. यार टीम वालों, तुम तो उठा लो यार. थैंक यू, थैंक यू. ओके, वैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है. और इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहूंगी, काजल मायने तो रखता है, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्टेज पे भी बता दो, कभी काजल बनाने का ट्राई किया है? काजल ने तो बताया था, आप भी बता दो घर पे. Honestly मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है. कभी भी नहीं. ये मैंने देखो, हाँ हमने ये टिप मिल गई है वहां ये से. बनाया. काजल ऐसे बचपन में दिए के सूट से नहीं बनाया कभी, बट सीधे ये बनाया. क्या बात है, मतलब थोड़ा वक्त लगा. यस, पहले काजल नहीं मिली थी. कितना टाइम पहले काजल से मिली आप? आई थिंक लास्ट ईयर अगस्त से हम लोग मिले हैं. हमारी बात एक्चुअली कोइंसिडेंटली हमारा जो एसोसिएशन स्टार्ट हुआ वो उस दिन हुआ जब काजल के बेबी का बर्थ हुआ था. नील बॉर्न हुए थे. So that was 19th April last year. And then, of course, she, wanted to be with the baby.
but we shot our first film in August last year. And since then, I hope we never look back because we haven't so far. Yeah. We have the journey of Kajal being a taxter. We want you guys to please play that AV that we have, the video that we have, like how Kajal became a taxter. So before we play that, taxter है क्या वो जरूरी है, right? Of course, yes, yes. So guys, interestingly, आप लोग थोड़ा सा मेरे को लग रहा है एनर्जेटिक कम हो रहे हो. दारू बहुत अच्छी रखी है पीछे. अगर आप देखोगे वो भी काफी सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से ब्लेंडेड है. Yes. हमारे जितने की इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबके संग हैं और फिर भी बहुत टेस्टी है और मजा आने वाला है. मतलब आज right? परम, श्रीधा, काजल सबने ठान लिया है कि आप सबको आयुर्वेदा से मतलब एकदम रूबरू करवा के मानेंगे. मतलब बाहर जाके ये क्या आयुर्वेदा ही है, है ना? बाकी सारी चीजें पीछे. हाँ, right? और मुझे लगता है कि फटाफट से हम टैक्सटर वीडियो दिखाएं और उसके बाद एक एक्टिविटी करेंगे इसके ओके, बाद. डन है. राइट. सो टैक्सचर का एक डेफिनेशन है यार. सो काजल के हस्बैंड गौतम और मैं बैठे थे जब हम काजल के संग अपनी बेबी केयर फिल्म की शूट कर रहे ओ थे. वाओ, सो वहां से ये आइडिएशन शुरू हुआ था क्या बात. कि व्हाई डोंट वी कोलैबोरेट ऑन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, राइट? nice. एंड दिस वाज लास्ट ईयर सितंबर अगस्त. उसके बाद से ये जर्नी शुरू हुई कि हम क्यों नहीं वो प्रोडक्ट दें जो हर इंसान की और स्पेसिफिकली फीमेल्स की ना डेली नीड है, बिकॉज इट्स अ डे टू डे रिक्वायरमेंट. और उसको कितना इफेक्टिव, केमिकल फ्री और लॉन्ग लास्टिंग बनाए कि इंसान को ना यार अच्छा लगे, अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और फिर भी पॉकेट को हर्ट नहीं करा. एंड हु बेटर देन काजल हैविंग सच wonderful, beautiful eyes to Absolutely. take the product to the world, Oh, right? ho, ho, Param, that's too much flattery now. हाँ, गौतम सामने बैठा, मारना ही मेरे को. नहीं, परम ने बिल्कुल जो कुछ भी कहा है सच कहा है. गीता पे हाथ रख के कसम खाई थी इससे पहले, है ना? बिल्कुल. और टैक्सचर क्या है कि जितनी हमारी टैग की फैमिली है ना यार, हम 2 साल पुराना ही ब्रांड है और 2 साल के अंदर में वी आर नाउ 700 पीपल इन द कंपनी, राइट? 2 साल की ग्रोथ है हमारी. यस. और वो 2 साल के अंदर के जितने लोग टैग में आए हैं उनको टैक्सचर कहते हैं. तो जिस दिन हमने ये सब साइन किया था ना, वेयर काजल एंड गौतम ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड, वेरी रेयर सेलिब्रिटीज कम फॉरवर्ड टू पुट मनी इन यंग एंटरप्रेन्योर्स, एक्चुअल मनी, नॉट स्वेट इक्विटी. अगर आप समझते होगे, यंग जनरेशन हो, सो बहुत बहुत बड़ी बात होती है, राइट? तो वो दिन था जब टैक्सचर, काजल एंड गौतम बिकेम टैक्सचर्स इन ट्रू सेंस, कि दे आर एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस टैग फैमिली. तो गौतम के लिए भी एक बार ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. आइडिया तो वहीं से आया है ना? एब्सोल्युटली. तो कैन वी हैव द टैक्सटर वीडियो? प्लीज. एंड एवरीवन आउट देयर, अपने पूरे होशो हवास में, अपने पूरे होशो हवास में आज ये कसम खाते हैं आज ये कसम खाते हैं कि हम आज से कि हम आज से काजल बाय काजल के अलावा काजल बाय काजल के के अलावा अलावा और कोई काजल यूज नहीं करेंगे. और कोई काजल काजल यूज यूज नहीं करेंगे. इसके लिए मैं पेमेंट एक्स्ट्रा लूंगी. डन. Well, काजल बाय काजल में भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग शायद नहीं जानते हैं और वो श्रीधा और काजल डिस्कस करने वाले हैं हमारे पहले बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चिट चैट में. दैट इज अ फायरसाइड चिट चैट बिटवीन द टू गॉर्जियस वुमेन आउट देयर ऑन स्टेज. कैन वी प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक योर चेयर्स? यस. तो अभी काजल बाय काजल, द ट्रांसफॉर्मेशन विद आयुर्वेदा पे डिस्कशन करेंगी हमारी बहुत खूबसूरत श्रीधा सिंह विद द वन एंड ओनली ब्यूटीफुल एंड वर्सेटाइल काजल अग्रवाल. एक बार तालियां तो बजा दो यार. थैंक यू. So guys, we're very excited to do this, and we'll have some very interesting conversations because it's important to know that Kajal Agarwal जो स्क्रीन पे दिखती हैं और जो आज दिख रही हैं, behind the scenes क्या चलता रहता है, and there'll be a lot of things that most of us do not know because वो शायद कभी सामने आई नहीं. So I hope we have your attention, and guys at the back, this is going to be the first time you will ever hear this directly coming from Kajal. So Kajal, I'm going to ask you something that most of us do not know about you. Firstly, Shridha has already put me under pressure, guys. Like now, whatever I say, I have to make sure that I've never said it before. I think you'll manage. So tell me about your early life. Tell me, how did you decide to be an actor? So basically, my journey started when I was in my final year of college. I was studying Bachelor's of Mass Media, and I was doing an internship with a multinational company
you know, one of those graded internships where you have to submit it to college and then you're graded and your final graduation marks are based on that particular internship. It was one of those. Having said that, I got an offer for my first film. And at that point, I was like, okay, I'll just do one film. It'll sound great on my CV. And let's just do it for the versatility of it. I did it, and I did not take very much to the film industry or to my experience of that film. It was a great film. I was playing this village girl, and I had to do things that I never imagined doing in my life ever before. I was under barbed wires, walking in pools of mud, like crawling down pools of mud. I had to swim in lakes which were unknown territory. I did not even know if there was a crocodile in the lake. I had to run bare feet with goats and sheep and their left behinds all over the place. So it wasn't a very pleasant experience for me. Having said that, I decided to stick on with my journey and my career in the movie industry. And I'm so grateful for that today. And I'm so grateful for the way I started, for the grueling beginning that I had. I don't think I would be here conversing with all of you, sitting here in front of you, had it not been the case. The biggest lesson, the biggest takeaway for me was perseverance, discipline, dedication, and just believing in the power of hard work. And that is one thing that I like to emphasize upon every time I talk about my journey, that you just basically got to stick on. You do have to badlo your nazariya from time to time, but just stick on. That's the only way to success. Thank you. So, Kajal, as always, you look heavenly. Do you have any tips for us? So what do you do for your skin and hair? Like, how do you look so lovely all the time? You're too kind, Sridhar. To be honest, I'm a very fuss-free person, guys. I don't do too much. I believe in a basic cleansing, toning, moisturizing regime. I truly believe in good, responsible, ethical products. I believe in that kind of cinema. I believe in those kind of brands to endorse, collaborate, associate with, and now it's just become a philosophy of my life. I like living a very disciplined life and like using clean, disciplined products on my face. Great. So, there's so many things on your plate. There's so many roles that you juggle in. How has your life changed ever since you've become a mother? It's the best phase of my life. It's changed for the better. Of course, it's extremely hectic. Of course, there are sleepless nights. There are nights where my baby just refuses to sleep, and I have a song shoot the next morning. There are nights when I've had a very hectic session, giving interviews till late in the night the previous evening. My baby doesn't sleep, and I still have to show up to work the next morning. So, of course, all that, including, on top of all of this, there's mom guilt. But having said that, this is just the best phase of my life, and I couldn't be more grateful. How sweet, how sweet. Somewhere recently I saw this ad from Tanishq that started with celebrating women as super women, but then it ended with a very beautiful note. Is that a compliment or an expectation? So, but I'm sure you're managing it so gracefully. So co-creating or becoming a part of a brand requires a lot of emotional investment. There's a personal investment. There's a lot of time that goes into it. So why did you decide that this was the right time, and why TAC? I think the single most important factor to invest yourself personally, emotionally, financially, with anybody in any relationship is trust. Of course, I was lucky to find that with Sridhar and Param. I was lucky to find that with TAC and the entire family of TAC. And it was just the most natural, beautiful amalgamation. It was a very easy transition. And like I said, I believe in
brands that resonate with how I feel, that stand up for ethics, morals, values, and that stand up for themselves. As an actor, I also feel it's my job to entertain, but I have a much bigger social responsibility. I'm sure all of you sitting here feel this way too. As content creators, as influencers, there's this natural responsibility, there's this natural pressure to ensure that we don't do the wrong thing. We don't endorse the wrong sort of products. We don't set the wrong type of examples. There are people of all age groups watching us, learning from us, observing us, wanting to copy us. We need to make sure that we stay responsible and we set the right kind of examples for the future generations. Having said that, there couldn't be a better fit than TAC for this lovely marriage. This brand truly stands for what they believe in, as do the founders, Sridhar and Param. They've come from very simple beginnings. They have worked extremely hard to be where they are today. And they believe in giving back to society in the right kind of manner. I personally believe in the same. I personally believe in ensuring that I can bring a smile upon one person's face. I, through my movies, through my brands, through my collaborations, ensure that I try to improve the quality of at least one person's life. And having said that, there just couldn't be a better fit. So, Kajal is also our Nazariya Badlo campaign ambassador. When we, when we talked about our journey, when we started TAC, we were going against the conventional norms of Ayurveda. We were creating an Ayurveda that looked young, that was super fast performing, that was, highly functional. And in this campaign, we talk about breaking stereotypes. We talk about doing the thing that we believe in. We talk about doing the, not so easy thing, but doing the thing that is right across situations. So, Kajal, I think you briefly touched upon your Nazariya Badlo moment. I already have. Yeah. So, but would you like to talk a bit more about your Nazariya Badlo moment and how it has become a part of your day-to-day life and how it is so integral to your personality now? So like Sridhar said, of course, I've already touched upon this topic, but I would like to give the credit to everyone sitting here today. I think we have a common Nazariya Badlo going on amongst us all, which is standing up for ourselves, standing up through our respective pages, standing up through our respective profiles for things that we believe in. And I think collaboratively, all of us can actually make a difference in influencing the world today, changing the Nazariya of at least that one person today sitting here, and making sure that we stand for the right, not for the easy. Thank you so much. Thank you so much. You've been wonderful. So, Kajal, may I now request that we turn the tables and we would now require Namita to support us with the next round of interactions. So now that officially you're a taxter, why don't I leave the seat and you come here and we'll have our next set of guests. Yeah. Gladly. Yeah. What is this like? What is that called? That chair game? Musical chairs. Musical chairs. Mommy brains. Thank you so much for the lovely and wonderful discussion. Thank you, Sridhar. Thank you so much, Kajal, for giving us all this remarkable point of view that we all went through. Can we have a huge round of applause for Kajal and Sridhar over here? And now, music के साथ musical chair में chairs exchange हो जाएंगी. Or as we all know that women are breaking the glass shatterings everywhere. And they are just here to strengthen the women empowerment, I would say. And everyone out here, I think, believes in the empowerment of women because today we are free to express ourselves. We have every right. You can please take your chair. And now I would like to introduce two very gorgeous women out there. Firstly, I would like to invite one and only beautiful, talented Andrea Kevichus, who's a
prominent figure in the Indian film industry for her outstanding contribution as an actress. She just won the Filmfare 2023 award for the Best Debutante. So can we have a huge round of applause for her? With her talent and dedication, Andrea has made a significant impact in the entertainment world and continues to inspire others and all of us out here. And along with her, I would like to invite Miss Aparna Gupta, who is here with us. She is a fragrance lover, yes, a spa devotee also, a consultant beauty editor, a role in which she advises brands on content for. Welcome. अरे वाह वाह, मतलब हम सबको मौका मिला है आप सबको यहाँ पर बुलाने का. With Nisha, I would like to introduce Kashika Kapoor, who is an Indian social media influencer, content creator, now an actress too, with the presence on Instagram, I would say. In fact, इनके हैं 13 million followers. Oh boy. और कैसे हो जाते हैं ये आप प्लीज मेरी तरफ से भी पूछ लीजिएगा. कंटेंट क्रिएट करते करते मुझे आज तक समझ नहीं आया यार ये इतने फॉलोअर्स कैसे मिलते हैं. कोशिश करती हूँ, हार जाती हूँ, है ना. तो ये मेरी तरफ से सवाल. Sure. Well, thank you so much for coming. Well, we would like to introduce Dimpy Sanghvi also, who is between us today. Luxury and travel creator, and she is famous for her travel vlogs. वैसे travel vlogs की बात करें, बहुत कोशिश की नहीं बना पाई. So yes, please welcome Dimpy. Hi, Dimpy. So all of you gorgeous women are there, and your hot seats are there. Seats are there. You'll make them hot, है ना? Okay. Now you can carry on with the discussion. And do we have mics for them? Yes, yes, of course. Why not? 3 ही हैं मेरे पास. All right. आपके और परम के लिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एक और रियलिटी शो क्वीन है हमारे साथ में, दिव्या अग्रवाल, हु इज विद अस राइट नाउ, जिन्होंने रोडीज में पार्टिसिपेट किया था, बिग बॉस ओटीटी की वो विनर रही हैं. जहां भी जाती हैं अपना जादू बिखेर देती हैं, कमाल कर देती हैं. आज बहुत गॉर्जियस भी लग रही हैं, हमेशा ही लगती हैं. वैसे युविका इज लुकिंग गॉर्जियस इन वाइट एंड यू आर लुकिंग इन दिस कलरफुल अटायर. हाउ हैव यू बीन? ओह माय गॉड. वेल प्रिंस आपको और परम आपको, पहले प्रिंस आपसे शुरू करेंगे. आपको युविका एंड अलोंग विद युविका दिव्या की मतलब एक तारीफ करनी है उनकी स्माइल को लेकर. तो पहले आप युविका के लिए क्या बोलोगे, फिर आप दिव्या के लिए क्या बोलोगे? नहीं, इनके लिए तो एक ही है, इनकी स्माइल मेरी स्माइल है ना. मैं इनको हंसते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरा स्ट्रेस बूस्टर है इसकी स्माइल. यू नो, जब मैं आता हूँ कोई शो से लेके आता हूँ तो मेरे को लगता है कि जब ये हंसती है तो मेरे लिए सब कुछ ओके हो जाता है. वही गाना एक्चुअली बना ही इनके लिए था. मैं लेट पैदा हुआ हूँ. दिव्या वो इंसान है, मतलब मैंने इसको शोज में देखा हुआ है कि इसके जो मतलब सामने है वो बोल देगी, है ना. अप फ्रंट है, जैसे मतलब मैं भी ऐसा हूँ, देसी कुछ छुपता नहीं है मुझसे, जो है मैं सामने बोल देता हूँ. तो ये भी वैसी है. सो आई एम वेरी प्राउड कि यू नो हम भाई बहन हैं तो एक जैसे चल रहे हैं हम. यस. मेरी बीवी की मैं ही करूँगा. हाँ, तो मैं एक्चुअली कुछ बोलने वाला था. कर लो भाई. तो बड़ा ऐसा सवाल है कि मेरी बीवी मेरी को फाउंडर है, वो यहाँ है, राइट. इनकी बीवी यहाँ है और उनकी अभी अभी शादी होने वाली है. माई वाइफ इज समवेयर. श्रीधा, वेयर आर यू? श्रीधा पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आज जो बोलूंगा उसको सबको टैक्स से जोड़ूंगा. तो यार मतलब so it's like I guess makeup makes women actually more beautiful. वो वैसे naturally मेरे को तो लगता है सारे बहुत सुंदर होते हैं, right? तो smile and kajal, I guess, you know, they go very well together. And I hope you love the product which we have launched. मतलब and that makes you even more beautiful. क्योंकि that's what I. And we all want you and all of you to smile because smile is the essence of life. Yeah. You can all have your respective Please. chairs. Thank you. Now, Thank you guys. let's get on with some adventure on the show. Hi guys, can I have your attention please? Hello. फ्री की दारू से हट जाओ. भाई आयुर्वेदा की दारू है, थोड़ी ज्यादा चढ़ जाती है तो थोड़ा ध्यान से पिए, है ना. काफी सारा कंटेंट क्रिएट करना है और आप लोगों के लिए ये बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो वेट कर रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, राइट. सो हम लोग यार एक काफी फन सेशन करते हैं, राइट. फन सेशन एज इन की फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग एंड यू नो being a part of our journey. Thanks for inviting me. Right? Thanks for inviting. And I hope, you know, this relationship is starting from here. It'll go a very long way.
and we hope to keep collaborating with you, all of you forever types, right? Because हम लोग जो बनाने निकले हैं वो है कि आयुर्वेदा को हम एक यंग जनरेशन से जोड़ रहे हैं, राइट? एंड यू गाइज हैव बीन दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि जिसने एक्चुअल ओजीज ऑफ कंटेंट है. यस, आज कंटेंट इंस्टाग्राम पे चला गया है, बट यू गाइज हैव बीन देयर वेयर द एक्चुअल रेवोल्यूशन वाज हैपनिंग, राइट? कि जहाँ पे कंटेंट चेंज हो रहा था, राइट? सो प्रिंस, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. चेक. Right? Check. So, matlab, what do you think that, what has been that one thing that really, has helped you to stand apart, right? आपने बहुत कुछ बहुत यंग एज में अचीव किया है, बहुत कुछ जीता, राइट? क्या ऐसा रहा है कि जो आज की यंग जनरेशन ना बहुत छोटी विंस पे बहुत खुश हो जाती है. दे फील कि यार मेरे आई विल नॉट पॉइंट इट आउट कि मेरे फॉलोअर बढ़ गए तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में. बट व्हाट डू यू थिंक दैट हैज वन थिंग हैज रियली स्टैंडर्ड इन फेवर ऑफ यू? भाई मेरे को लगता है कि मैं ना बहुत छोटी एज से काम कर रहा हूँ. एज ऑफ 16 से मैंने अपने डैड की शॉप पे बैठना शुरू कर दिया था. एक गांव में हमारी शॉप है मोहाली के पास ही. तो मैं फैब्रिक का काम करता था. तो मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ. मैं मतलब बहुत छोटे होते से काम कर रहा हूँ. पर मैं अभी जो फ़र्क देखता हूँ जनरेशन में, वो देखता हूँ कि अब की जनरेशन ना मेहनत करके राज़ी नहीं है. उनको सब कुछ सिर्फ फ़ोन से चाहिए. उनको सब कुछ चाहिए कि हमारे पास फ़ोन है, हम इससे कमा लेंगे. इफ़ वर्ड की ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो तुम क्या करोगे? एट द एंड मेहनत कम आएगी. हम बच्चे होते रहे, हम ग्राउंड में खेलने जाते थे. और हम धूप लेते थे, सब कुछ करते थे. वहाँ से स्पोर्ट्स से हम एक्टिव भी रहे, एक्टिविटी हमारी बढ़ती रही है. आज अगर मैं अर्जाइल हूँ, मैं शोज़ को समझता हूँ, इट जस्ट कि मैंने वो सारी चीज़ें पहले कर रखी हैं. अब अगर आप देखोगे तो हमारे घर खुद के बच्चे भी हैं, वो पबजी खेलते हैं. उनका गेम बाहर कुछ है ही नहीं. सो मुझे लगता है कि मैं ये बोलता हूँ कि सबको कि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है ना. और तुम्हारा एक फोकस रहना हर चीज़ को लेकर कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है. प्लान बी नहीं होना चाहिए. प्लान बी तब होना चाहिए जब तुम्हें लगे यार. मेरे को लगता है कि अगर यार, मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर तुमने एक्टर बनना था और तुम नहीं बन पाए तो गलती तुम में है, तुम्हारे फोकस में है, तुम्हारी मेहनत में है. क्योंकि अगर तुम मेहनत करते तो हम कौन सा यार कोई ऐसे थे कि हमारा कोई यहाँ पे गॉडफादर था. हम तो खुद ऐसे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा है ही नहीं जो कभी बॉम्बे आया हो. आई एम द ओनली वन जो बॉम्बे आया था पहली बार. सो अगर तुम्हारी मेहनत में कमी है तो तुम्हारी ज़िंदगी में कमी रहेगी. तो आई थिंक वही मैं कभी महसूस करता हूँ लोगों में. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो मतलब जैसे युविका, फॉर यू, अच्छा पहला पर्सनल चीज, हाउ डिड यू गाइज मेट? व्हाट हैज बीन द स्टोरी, बैक स्टोरी फॉर दैट? जिंदगी में कहते हैं ना, जिस चीज़ को मना करते हो और वही चीज़ पीछा करती है. बिग बॉस में कभी जाना नहीं था और लाइफ पार्टनर तो कभी नहीं चाहिए था वहाँ से. बट देखो हम दोनों का पहला रिएक्शन एक दूसरे को देख के था, नो नो नो, शी इज टू स्वीट. Oh yeah, no, he is not my kind. He's not my type. सो हैव यू गाइज वर्क टुगेदर पूरा प्रोफेशनली? मतलब मिलने के बाद तो मैं सिंगर भी हूँ, तो मैं अपने गाने भी करता हूँ. तो मतलब मिलने के बाद तो मैं सारे काम ज़्यादातर इसके साथ ही करता हूँ. मतलब ये मैं इसको बोलता हूँ, तू चुंबक है, लाइक यू आर अ मैग्नेट, है ना. कि मैं कहीं भी जा रहा होता हूँ ना तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये उस चीज़ में आ ही जाती है. तो मतलब बेबी अभी मुझसे बेटर ऑप्शन मिलता नहीं है तो क्या करें, मैं आती हूँ. वो तो लाइफ में नहीं है. सही है, सही है. Divya, coming to you, how has been your journey in this, reality world? And it has always been very candid for you. मतलब सब जैसा है. हाँ, बिकॉज मतलब ऐसे कई बार मैं लोगों को मिलती हूँ जो मेरी मेंटालिटी है, द वे आई वांट टू वर्क और द वे आई वांट टू जस्ट रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा नेचुरल है और इतनी ज़्यादा कैंडिड है कि जब मैं वो करके आ जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये ठीक नहीं था, इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट ओवर. तो it has been like there's no black and like there's no gray, it's either black or it's either white. So I think that has helped me to focus, जैसे भाई बता रहे थे कि focus is very important. I think that has got me like I know what I want and I know what I'm doing. That's it. So a lot of new things happening for all of you right now, right? So you are getting married very soon. Yeah. Congratulations for that. Thank you so much. So अब एक जैसे वो होता है ना, स्पॉन्सर इस इवेंट के हम खुद ही हैं. तो क्या आपने आयुर्वेदा यूज किया है अपने मैरिज की एक ग्लो के लिए? I was about to say टेक का ही मेकअप यूज करना. राइट? क्या आप आयुर्वेदा पे विश्वास करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ऑनेस्टली ऐसी इंडियन कल्चर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई सालों से चलती आ रही हैं. एंड इवन जो छोटे छोटे घर के नुस्खे हैं, आई थिंक
we as Indians, we've always known the goodness of Ayurveda, the goodness of natural things. हमारे kitchen में ही आधी दवाइयाँ मिल जाएंगी, you know. Yeah. So we have been brought up with that, and अब जाके वो सब trend हो रहा है, वो सब चमक रहा है, and people are going back. The Western culture wants to follow us and follow the Indian culture. I think that's what we are coming to, right? Back to the roots, and I guess new generation should be like extremely proud of, you know, the Ayurveda, proud of the knowledge that our culture holds. Great, great. So you can be a very good brand ambassador for us. तुम्हारी thank you. campaign है Get Back with TAC. Get back with that. I think I would love to do that, because that's where we want to head for. Even in food, people are trying n number of foods, but I think the regional food what we have ticks all the marks, right? तो आपके घर का खाना आपके best. शादी वाला ग्लो स्पॉन्सर्ड बाय टैक. Oh, perfect. I didn't know ये इवेंट पे आने से मेरे इतने सारे फायदे हो जाएंगे. सही है. मैं फाउंडर हूँ ना. Oh, perfect, मैं कुछ perfect, भी कर सकता हूँ. perfect. सीधा साइन करा लें, है ना? परफेक्ट. काजल, पूरे वेडिंग में जितनी लेडीज आएंगी, जितनी लड़कियां हैं, सबको काजल लगाऊंगे मैं तो. या. लड़कों को भी बोलेंगे आप भी काजल लगाओ, बहुत अच्छी बिल्कुल. बात है, नजर नहीं लगेगी. बड़ी अच्छी बात करी यार आपने. प्रिंस, आपको लगता है इज मेकअप इम्पोर्टेंट फॉर मेन? भाई मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं, you know, सब मेकअप यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे केस होते हैं मैं भागता हूँ. मुझे लगता है कि मेरी स्किन, अभी जैसे आप बात करो ना, कि हम उस ज़माने में पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर हम अपने कल्चर को भूल जाते हैं कि असली चीज़ें आयुर्वेदिक ही हैं. यू नो कि जितनी हम पुराने घर के नुस्खे यूज़ करते हैं वो इफेक्ट उन्हीं से बढ़ता है. पर आजकल हम ऐसे हो गए कि हमें जेब से अगर निकलना है तो हमारा बाहर की चीज़ निकल जाइए यार, कि ये मैक दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए. इंपॉर्टेंट था कि लोगों को पता है हम ये यूज़ करते हैं, पर हमें अंदर पता है कि वो चीज़ें हमें ख़राब कर रही हैं. हम उसको मानने को तैयार नहीं है. मैं ऐसा ही हूँ जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में. मैं वैसे ही पंजाब से हूँ, तो मैं जितनी देसी चीज़ें होती हैं मैं उन्हीं को बिलीव करता हूँ, उन्हीं को यूज़ करता हूँ. और येस, मेरे को लगता है कि जितना मेकअप लड़की के लिए इंपॉर्टेंट है उतना लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम ऐसी फील्ड में हैं. अगर हमें अच्छा दिखना है और हमें लगता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को और ग्रो करना है, तो मुझे लगता है मेकअप यूज़ करना चाहिए. अच्छा, तो आप आयुर्वेदा बड़ा यूज़ करते हो. आपने आयुर्वेदा में शिलाजीत यूज़ किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एवरीडे यूज़ करता हूँ. तो यार एक बात बताओ, शिलाजीत के ना बड़े खराब परसेप्शन शिलाजीत लोगों को लगता है दिस ओनली फॉर सेक्स. दैट्स नॉट द ट्रूथ. अगर आप देखोगे शिलाजीत बनती है पहाड़ों में, है ना, जहाँ पर जब पानी बिल्कुल सा क्रैश करता है, उसकी काई होती है, उससे शिलाजीत बनती है. इट्स सो पावरफुल. अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, अगर आप शिलाजीत खाते हो तो वो जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा. ये लोगों को नॉलेज ही नहीं है. और लड़कों के लिए इट्स नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, है ना. और अगर हम दवाइयों में ढूंढते हैं, लोगों को ये ढूंढते हैं कि हम ये खाने में डालेंगे, अगर आप शिलाजीत दे रहे हो, आई थिंक उसके बाद तुम लाइफ में चेंज देखोगे. तुम कितने एक्टिव होते हो, और तुम्हारे जॉइंट्स में जो पेन है, जो हमारा काम करने के लिए, क्योंकि हम इंडोर इतना शूट करते हैं कि हम धूप नहीं ले पाते, तो उसके लिए अगर मेरा जिम का बैग लाया था, मैं आपको भी दिखाता कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ. तो हमारे ना एक रिसर्च में था कि सो शिलाजीत रेजिनिक फॉर्म में आता है, विच इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ शिलाजीत, राइट. सो इंडियन परसेप्शन में इतना ज़्यादा शिलाजीत को सेक्स से जोड़ दिया गया है. एंड व्हेन यू लुक एट नाउ यूएस, राइट, यूएस में शिलाजीत इज बीइंग कंज्यूम्ड अ लॉट बाय फीमेल्स बिकॉज इट इंक्रीजेज एंड हेल्प्स योर स्टैमिना एंड मेटाबॉलिज्म, राइट, जो इंडिया में नहीं कंज्यूम हो रहा है. सो अ लॉट ऑफ परसेप्शन इज ऑल्सो वॉट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू किल फ्रॉम द ब्रांड, कि यार आप गलत परसेप्शंस के संग मत जियो. मतलब आप जितने भी गांव में जाओगे ना, विलेजेस देखोगे, वहां पर अभी भी जैसे अफीम को बुरा बोलते हैं, है ना. अफीम भी मतलब हर दवाई में अफीम होती है. सो शिलाजीत भी ऐसी है. अगर एज मतलब कुछ हमारे वहाँ पे बुजुर्ग होते हैं जो 50-60 के बाद उनके घुटने चलने बंद हो जाते हैं, तो उनको शिलाजीत दी जाती है, और उनको वो काम करती है उनकी लाइफ में. सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सिर्फ उसको हटाना पड़ेगा कि शिलाजीत ओनली फॉर सेक्स, दैट्स नॉट द ट्रूथ. उसके बहुत सारी जो इफेक्ट्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उन पे भी फोकस करो. तो विल वर्क टुगेदर ऑन शिलाजीत. इसीलिए तो मैंने बोला था. आई थिंक आपने डिसाइड करके बैठे हुए हो. तो युविका जी, what is the secret of your skincare regime, which तो मुझे भी जानना है. This तो even I want to know. This तो even I want to know. which so देखो वो आपके लिए लिखा है, always glowing, always young and always glowing. ओह हाउ स्वीट, थैंक यू. बहुत सिंपल है, कुछ हाई फंडा नहीं है. आई विल बी बैक टू माई आयुर्वेदा. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. या घर का खाना अवॉइड करती हूँ, बाहर का खाना. घर का खाना खाना, बहुत सारा पानी पीना और दिल खोल के जीना.
मतलब इसका एवरीडे होता है, एवरीडे मैं देखता हूँ कि बेबी बाहर से शूट करके मैं आ रहा हूँ, टैनिंग मेरे को, हल्दी तुम लगा रही हो, ये कहाँ का यार? पैसे इतना पैसा बर्बाद करती है, सारे ब्रांड्स लेके आ जाएगी, बट यूज करेगी घर का, मतलब चाहती क्या है? मैंने कहा बेबी सेटिस्फैक्शन। ग्रेट 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 ग्रेट। सो यार वन थिंग ना, ये जो हमारी कैंपेन है इसमें हमने एक हैशटैग दिया विच इज नजरिया बदलो, राइट? नजरिया बदला इज द वे, मतलब वो ऐसा कौन सा टिपिंग पॉइंट है अपनी लाइफ का जिसने आपको मजबूर किया है एक नया पर्सपेक्टिव, नए तरीके से सोचने के लिए? ऑल थ्री ऑफ यू, व्हाट वुड बी योर नजरिया बदलो मूवमेंट? सो मेरा नज़रिया बदलो ये है कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो भाई मैं जैसे बोलता हूँ, मैं पंजाब से, मैं बहुत दिल से हूँ, देसी हूँ बिल्कुल, मैं जो सामने है मैं बोल देता हूँ और मैं दिल में कुछ पीछे रखता नहीं हूँ ऐसे। तो मैं जब इंडस्ट्री में आया था ना, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे ऐसे जो मुंह पे बहुत तारीफ करते रहे और निकलती तो मैं गालियाँ देते हैं, यू नो। तो मैंने पहले तो उनको कट डाउन कर दिया, मैं उनकी लाइफ में जाता ही नहीं हूँ। और अभी मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लाइक 4-5 दोस्त हैं जो मेरे रहते हैं, बाकी मैं पूरा टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड करता हूँ। जब भी मैं बॉम्बे में होता हूँ मेक श्योर करता हूँ कि मैं इसके साथ रहूँ। नज़रिया ये है बदलने का कि यू नो यहाँ पे जो लोग तुम्हें दिखाते हैं वो होते नहीं हैं, है ना। लाइफ तुम्हें खुद देखनी है अपनी, तुम्हें खुद जीनी है और तुम्हें अपने रास्ते भी खुद बनाने हैं। तो मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं किसी मांग के काम नहीं करता हूँ, मैं अपने रास्ते खुद बनाता हूँ। तो मैं दुनिया को ये बोलूँगा, नज़रिया बदलो, किसी पे डिपेंडेंट मत हो कि कोई तुम्हें मिलेगा, तुम्हें काम देगा। आई थिंक तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा टैलेंट तुम्हें काम दिलाएगा और वही तुम्हें काम देगा। तुम कहीं देश के किसी भी कोने में बैठे हो, है ना, वहाँ पर अगर तुम्हें टैलेंट है ना, तो वहाँ से भी निकल के वापस आ जाओगे। और कुछ लोग आके बोलते हैं, जब मैं ऑडिशन ले रहा होता हूँ कि सर हम छोटी सिटी से हैं, तो मैं बोलता हूँ छोटी सिटी नहीं होती, छोटी सोच होती है, यू नो, कि जो तुम्हें छोटा रखती है। हमारे देश के जितने भी एथलीट हैं, जितने भी यू नो ओलंपिया में खेलते हैं, वो सारे छोटी सिटी से हैं, उनकी मेहनत काम आती है ना। तो मैं बोलता नज़रिया बदलना पड़ेगा, खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों पे कम, तभी तुम आगे बढ़ोगे। थैंक यू यार, वेरी गुड वेरी गुड। फॉर यू? मैं तो यार, इट्स अ वेरी फनी थिंग, ओके, बट नज़रिया बदलो, मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ लोगों का नज़रिया बदलने के लिए। आई काइंड टेक इट ऑन माई ईगो, ओके, नहीं यार ये ऐसे कैसे सोच सकता है, ये तो गलत सोच रहा है, अब मैं इसका नज़रिया बदल के छोड़ूंगी। लाइक यू नो, आई ऑलवेज लाइक टू डू थिंग्स विच आर लाइक व्हेन पीपल से अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है यार, हम करेंगे, दिस इज नॉट द वे, यू नो, देयर हैज़ टू बी अ वे। तो वो नज़रिया जो था, वो एक थिंकिंग हमेशा वैसी ही रही है। एंड लाइक आई बिलीव कि किसी को बोलने से नज़रिया बदल नहीं सकता अनलेस यू प्रीच इट, यू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आई मेक श्योर दैट जो भी मैं करूँ, I don't have to tell the people कि you know you should do this, you should do that. Probably I'll just do what I want to do, and if they like it, they'll follow. And with my with the following, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ, and if I'm getting success little by little, I think it's a great example for them, and they should just like kind of do what they want to do. So नज़रिया बदलो, it's like करो यार, it's not a problem. और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि दुनिया क्या सोचती है। मैं दुनिया के बारे में ये बोलता हूँ कि अगर भगवान उतर के नीचे आ जाएगा ना, वही बोलेगा ना मैं भगवान हूँ, तो लोग कहेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, अरे चलना है यार, क्या मजाक कर रहा है। तो तुम्हें खुद पे बिलीव करना चाहिए। आई थिंक लोगों का नहीं सोचना चाहिए, लोग कभी तारीफ करेंगे भी नहीं, और जो करेंगे वो सिर्फ घर वाले होंगे, और वही मैटर करते हैं आई थिंक। एब्सोल्युटली। फॉर यू युविका? For me, I'll keep this around only, your Ayurveda, and this is very honest answer. बचपन से सुनते आए हैं कि घर की चीज़ें इस्तेमाल करो, घर की चीज़ें, पर अक्ल तब आती है जब आप पूरे बर्बाद कर चुके होते हो, पैसे भी, टाइम भी, और पेरेंट्स को पूरा इरिटेट कर चुके होते हो। लेकिन वक्त के चलते why I'm saying this today, I want to carry on this in my future with my kids, कि come back to roots. It is very important. We are losing it and people are enjoying outside. जो हमारी खुद की धरती पे हमारा जो रूट है, हम उसको भूल के लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे घर वाले बोलते हैं ये, और बचपन से सुनते हैं, लेकिन हम भी ना, नो मॉम, नो डैड, उस चीज़ से निकल के अगर हम बेसिक ज़िंदगी में आएंगे, और मैं तो आ गई हूँ, मैं भी बहुत उड़ती थी, तो विद टाइम यू अंडरस्टैंड। सो मेरा नज़रिया बदला और अब भी बदल रहा है, और हर वक्त अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं ज़िंदगी में, तो आपका नज़रिया हर रोज़ बदलता है। और नज़रिया बदलना पड़ेगा ये भी देख के कि लोग हमेशा मेड इन इंडिया पे बिलीव नहीं करते, है ना। अगर एक चीज़ को आप मेड इन यूएसए के लिख के भेज दोगे तो वही सामान बिक जाएगा। अगर मेड इन इंडिया लिखा होगा तो लगा नहीं यार इसमें कुछ अलग ही होगा, अरे वो उन्होंने क्या डाला होगा, उन्होंने कोई बाबा की भूती है जो लाके डाल देंगे। We should promote our roots, what we are. Absolutely, yeah. Thanks a lot, guys. It was crazy so much. talking Thank to you. you. Thank you. Thank All you the so best much. for the new roadie season. Thank you so much, Looks brother. very Thank you. exciting, right? Thank you for your upcoming show also. Thank you.
वो याद रखना वो साइन 100%. आप लोग को भी जाना नहीं है, आप लोग को स्टेज पे ही रहना है. हाँ, we have Prince with us, so can we have a huge round of applause once again for Prince, Yuvika, Divya and Param as well. वैसे हमारे साथ सिंगर है, मैं सुबह से, सुबह मतलब जब से स्टार्ट हुआ है ना, कोई तो हो जो इतना सुर में गा दे आज हमारे लिए. We have with us Prince Narula, जिन्हें आज एक गाना सारी ब्यूटीफुल विमेन आउट देयर के लिए जो मैं डेडिकेट गाना करना सुनाऊंगा है. उनको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि मैं क्यों? पंजाबी गा रहा मैं हूं. भी तो पंजाबी हाँ, ऐदा दी केड़ी गल होगी. एवरीवन आउट है देखो, और पंजाबी गानों के बिना ना महफिल जमती नहीं है वैसे, है तो ना. अभी मेरा गाना आया था तोड़ मेरे खुद के चैनल पे जो Yes. जिसने ग्लोबल चार्ट पे रॉक किया था, तो मैं वही सुनाता हूँ. हाँ. किनू बनाया हुणे जान दस दे, Everyone. सीगा नक ते निशान दस दे, जिम दा शकीन लारियां ने पटता, मैनू पीण लाता क्यों समान दस दे, दस केड़े मूंह नाल रब नू जवाब देंगी, होर लुट लुट किन्ने नी सवाद लेंगी, गिल रोनी बारे जदों पुछणगे लोग, दस फेर केड़ा चेहरे ते नकाब लेंगी, एवें भंग पाने तेरे पिछे रोड़ती जवानी नहीं, खम खाई तेरे पिछे खट्टी बदनामी नहीं, ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੋੜ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾਇਓ ਸੱਚੀ ਮੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ. क्या बात है, वंडरफुल यार. मतलब आपने तो एकदम क्या बोलते हैं वो, ये पारिवारिक है ना, तो मैं बोल नहीं सकती है ना. वैसे है ना, ये फाउंडर बोल देंगे. 4 रखा है Spotify पे इस गाने ने. बहुत ही बढ़िया यार. Thanks for coming. Sagar bhai, thanks for having the, Thank you, Sagar. gang in the Thank you. TAG family, right? Thank you for bringing them in the TAG family, yaar. Cheers, guys. मैं सबको एक साथ इनवाइट कर लेती हूँ. परम, श्रीधा, निशा, काजल, गौतम, Ravinder, all of them together, and if we have Kashika also and Dimple also, please come on the stage because we have a cake cutting ceremony from the TAG family. So we would like to welcome you all. और मैं इससे पहले कि हम लोग केक कटिंग सेरेमनी करें, आप लोग स्टेज पर आए, हम आज बात करें काजल बदलो नजरिया बदलो की. तो मुझे लगता है एक शख्स ऐसे हैं जो जिंदगी में काजल कभी नहीं बदलेंगे, नजरिया जरूर बदल लेंगे, and that's Gautam, है ना. So Gautam, what you have to say about that? You have to speak. I can only get into trouble if I speak, so I'll say there's only one Kajal for me, and she's right here. So thanks, guys. Thank you so much, Gautam. You all please come on the stage. और वहाँ ठीक है, done.